Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to you all in the fourth video lecture of physics for grade 9. As you all know that we have started our chapter number 3, and in my previous lecture we have studied Newton's second law of motion, and today's our topic is about the Newton's third law of motion. So I suggest you all that before starting the video lecture, all the students should have books, notebooks along with your pencil should be in your hand in order to note down the difficult points. So students, let's start my lecture. Chapter number 3, Dynamics, and our topic is Newton's third law of motion, which is at book page number 66 and 67. Just after the Newton's second law of motion, you will see on the next page that Newton's third law of motion is at there. Okay. So before going to properly start my lecture, let's recall the previous knowledge about the Newton's laws of motion. In this chapter we have studied that Newton's have 3 laws of motion, and all these laws are related to motion of an object, including any force and acceleration. So in first law of motion we have studied if an object is at rest position, it will continue its rest position until some external force acts on it and to disturb it from its mean position. And in the second part we have studied that if an object is in motion, it will continue its motion along a straight line with uniform speed until some external force exert on it and to stop that particular motion of an object. In the second law of motion we have studied that if you apply a net force, means unbalanced force on an object, then this force will be directly proportional to the acceleration of the body, and also the acceleration of the body has inverse relation with the mass of the body. And after solving its equation, we come to a conclusion that F is equal to ma, that if you increase force on an object, then it will produce an acceleration in the body. This acceleration will be direct relation with its force, and this acceleration has inverse relation with its mass. Now Newton's third law is about action and reaction forces. Newton's third law of motion is very much simple. It doesn't have any mathematical steps. It is very much simple, but it is also very much interesting. I hope you all students will enjoy this third law of motion. In third law of motion, Newton says, to every action there is an equal but opposite reaction. To every action there is an equal but opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ में हमें ये बात बताई जा रही है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है. अब इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे, इसी तरह से हम इस एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, तब जाके हमें ये बात समझ आएगी कि यस, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, लेट्स कम टू एन एक्सप्लेनेशन. अगर हम इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on a second object, the second object exerts a force on the same magnitude and opposite direction on the first object.
When an object A exert force on an object B written as F और उसके सबस्क्रिप्ट में आपको छोटा सा ए बी दिखाई दे रहा होगा, यस दिस वन, कैपिटल एफ और उसके सबस्क्रिप्ट में आपको स्मॉल ए भी दिखाई दे रहा होगा. ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए रिटन एज एफ बी ए. यू सी यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ए बी और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ बी ए. ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई हमें दिखाई दे रही है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए. ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं. मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट लेता हूँ. अगेन हम टेबल की एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे. हमारे क्लासरूम में जैसे कि आप सब जानते हैं एक टीचर्स टेबल मौजूद होती है. ठीक हो गया. अब मैं इस टेबल को विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स मैं इसकी जगह से डिस्टर्ब करना चाहता हूँ. यानी मैं इस टेबल को थोड़ा सा अगर धक्का लगाऊँ तो वी ऑल नो कि ये अपनी पोजीशन से चेंज होकर थोड़ी सी आगे की तरफ चली जाएगी. यानी जिस डायरेक्शन में हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन पे ये मूव करेगी. अब हमने ये बात नोट की है कि लेट सपोज दिस टेबल इज़ ऑब्जेक्ट नंबर बी एंड माई हैंड इज़ ऑब्जेक्ट नंबर ए. ओके ओके. अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैं इस टेबल पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ड्यूरिंग अप्लाइड फोर्स दिस टेबल मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मैं एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इट इज़ एन एक्शन. इन रिस्पॉन्स ये टेबल कुछ ना कुछ फोर्स मेरे हाथ के ऊपर इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाई कर रही है कि नहीं, जिसकी वजह से समथिंग इज फीलिंग ऑन माई हैंड. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट नंबर बी रिएक्शन फोर्स. मैंने इस टेबल पे एक्शन किया और इन रिस्पॉन्स इस टेबल ने मेरे हाथ पे रिएक्शन किया और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर ली. इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल को देखें जो कि आपकी बुक में मेंशन है, जब हम प्ले करते हैं फुटबॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारा फुट है इट इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट नंबर ए और जो आपका बॉल है, जो फुटबॉल है जिसको आप हिट कर रहे हैं इट इज़ ऑब्जेक्ट नंबर बी. अब with the help of object number A you are going to exert a force on object number B. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन बन रही है, जब आप इस बॉल को विद द हेल्प ऑफ योर फुट हिट करते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आपकी जो फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन है इट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस ग्रीन वन एरो हेड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फुट ऑब्जेक्ट नंबर ए. एंड इन रिस्पॉन्स जब आप इसको हिट कर रहे होते हैं समथिंग इज फीलिंग ऑन योर फीट, एज इज इट एग्जैक्टली. तो यहाँ पर ये फुटबॉल इन रिएक्शन आपके पाँव के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है. ऑब्जेक्ट नंबर बी आपके पाँव पे फोर्स लगा रहा है जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो ये जो आपने फोर्स लगाई इट इज़ एन एक्शन, और जो ये आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जो आपके पाँव पे फोर्स लगा रहा है इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट हो जाती है. इसी वजह से ये जो एक्शन और रिएक्शन का फिनोमेना है ये वजूद में आ जाता है. याद रखें जब भी आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन ज़रूर होगा. दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है इसने फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट नंबर बी पे. ऑब्जेक्ट नंबर ए की जो डायरेक्शन है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन है और जो ऑब्जेक्ट नंबर बी है उसकी डायरेक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन है. तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें आपको अपनी बुक्स में भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ बी ए और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ए बी. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स. और अगर आप यहाँ पीछे देखें जो कि स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाई गई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए और यहाँ पर आपको एक माइनस साइन भी दिखाई दे रहा है. ये जो एफ ए बी है दिस इज़ द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड दिस इज़ द डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर बी ऑन ऑब्जेक्ट नंबर ए. यानी जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है, अगर हम फुटबॉल की एग्जांपल लें तो आपका पाँव इस फुटबॉल पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स ए बी, और इसी तरह से जो फुटबॉल है वो आपके पाँव पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये हो जाता है एफ बी ए. यानी फोर्स
A applied on force object B and force applied by object B on object number A. यहाँ पर माइनस इसलिए है क्योंकि फुटबॉल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं। इन द सेम वे इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक दूसरी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो कि आपको बुक में दिखाई दे रही है, एक्शन एंड रिएक्शन। और बेसिकली ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं दे आर एक्चुअली पेयर फोर्सेस। जब भी याद रखें रिएक्शन तब एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एक्शन हो, अगर एक्शन फोर्स नहीं है तो रिएक्शन फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। रिएक्शन फोर्स को हासिल करने के लिए आपके पास एक्शन फोर्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फिगर 3.6 बुक पेज नंबर 67 में। ये जो आपके पास जेट प्लेन मूव करता है, यानी एरोप्लेन्स वगैरह जब उड़ते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन किस तरह से है आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब पायलट जो है वो इस जेट प्लेन को उड़ाते हैं तो इन द टेल, फ्रॉम देयर टेल हॉट गैसेस जो है वो इजेक्ट आउट होती हैं फ्रॉम इट्स टेल। इट इज़ एक्चुअली एन एक्शन। इन रिस्पॉन्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन आपके पास ये है कि ये जो जेट प्लेन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ये हॉट गैसेस इसकी टेल में से इजेक्ट आउट ना हो, यानी कि एक्शन ना हो, तो ये प्लेन जो है क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। तो जब एक्शन होगा इसी तरह से रिएक्शन भी होगा। इस तरह से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपना एक पाँव जो है आइदर ऑफ आवर फुट, यानी लेफ्ट हो या राइट हो, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर रख देते हैं। नाउ वी आर अप्लाइंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, हम कुछ ताकत, जो कुछ फोर्स है वो अप्लाई करते हैं यानी ग्राउंड के ऊपर। सो इट इज़ एन एक्शन। इन रिस्पॉन्स ग्राउंड हमें क्या रिएक्शन दे रहा है? ग्राउंड हमारे ऑब्जेक्ट यानी हमारा जो पाँव है उसको ये रिएक्शन दे रहा है कि वो इसको सपोर्ट करके, और आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वो आपको इन रिस्पॉन्स इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा के आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाता है। सो इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, तो ये जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ड्यूरिंग देयर फ्लाई, अगर ये अपने जो विंग्स हैं इनको फ्लैप ना करें तो ये कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। सो बर्ड्स क्या करते हैं? दे आर फ्लैपिंग देयर विंग्स, इट इज़ एन एक्शन, एंड इन रिस्पॉन्स द एयर pushes that bird in the forward direction. It is actually the reaction force, ठीक है, applied by the air on that particular bird. So action reaction जो है it is basically a pair force. उसके बाद आप को एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बुक पेज नंबर 67 पे। एक्टिविटी है बैलून फोर्सिंग एयर आउट। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, लुक, आपने एक सेटअप करना है। क्या करेंगे आप? एक वायर जो है वो ग्राउंड से एक सर्टन हाइट के ऊपर, आप एक रूम में दो कॉर्नर्स के ऊपर जो है एक वायर को आप जो है तो अटैच कर दें, एंड कीप इन योर माइंड कि दिस वायर शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हो, थ्रेड हो, वायर हो आपके पास। और इस वायर के साथ आपने जो है वो एक बैलून को, जो एयर टाइट बैलून है, यानी जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एयर टाइट बैलून को आपने इसके साथ होल्ड डाउन कर देना है, और मेक श्योर कि आपने इस बैलून को इस वायर के साथ इन दिस वे अटैच किया हुआ है। जब आप इसको अटैच कर दें तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की एक लाइन दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि जो आपने इस वायर को दोनों साइड्स पे हैंग आउट किया है, इस वायर के सेंटर में आप जो है एक स्ट्रा जो है वो इसके सेंटर में आप उसको हैंग आउट कर दें, और उसके बाद जो है ताकि ये बैलून जो है वो फ्रीली मूव कर सकें। जब आप स्ट्रा को हैंग आउट कर देंगे इस थ्रेड में, तो उसके बाद इस विद द हेल्प ऑफ हुक्स, एक आपको दिखाई दे रहा है कि जो हुक है उसने बैलून को टाइटेंड किया हुआ है, और दूसरा जो उसका कॉर्नर है वो हमने उस वायर में हैंग आउट किया हुआ है। अब जैसे ही आप इस बैलून को रिलीज़ ऑफ करते हैं द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आप इसके बैक एंड से जो है, जो आपने इसको टाइटन किया हुआ है, बांधा हुआ है, आप उसमें से जो है वो उसको उतार दें। जब आप उसको उतार देंगे या उसको एक्सपोज कर देंगे,
यानी हटा देंगे उसको, खोल देंगे उसके माउथ को, तो हम ये देखते हैं कि जो हवा होती है वो बैक एंड से निकलना शुरू हो जाती है और वो बैक एंड पे जाना शुरू हो जाती है। इट इज़ एक्चुअली एन एक्शन। अब होना ये चाहिए कि बैलून भी इसी डायरेक्शन में बैक एंड पे जाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हवा जो है वो बैक एंड पे जा रही है, तो आपको एरो हेड से दिखाई दे रहा होगा कि बैलून मूव करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ एक्चुअली द रिएक्शन। अगर इस बैलून में एयर टाइट नहीं है यानी हवा नहीं है, तो ये कभी भी हवा इजेक्ट आउट नहीं होगी, तो ये बैलून भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। अगर आपने इसमें एयर टाइट किया हुआ है, हवा भरी हुई है, तो हवा जब बैक एंड पे जाएगी तो बैलून जो है इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या पढ़ा। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहा कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात, मैं दो बातें मैंने और भी आपको बताई। पहली बात ये कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये पेयर फोर्सेस हैं। हमेशा एक्शन होगा तो हर हालत में रिएक्शन भी होगा। अगर किसी जगह पे रिएक्शन है तो उसका एक्शन भी लाजमी होगा। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि एक्शन हो और उसका रिएक्शन ना हो। दूसरी चीज़ ये आपके पास कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं दे आर एक्चुअली हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन आपके पास अपोजिट होगी। Okay, so that is all about your today's video lecture. Hope you will enjoy this lecture. Allah Hafiz.